Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Today we are going to start the revision of future indefinite tense. Future mean मुस्तकबिल यानी के आने वाला ज़माना. First of all, let me tell you the definition of the tense. A verb in future indefinite tense tells you that an action will happen in future. ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें आने वाले ज़माने में जो काम होना है उसके बारे में बताता है. इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी? उर्दू जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है. इसमें आप एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर सकते हो. वो स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, वो गाना गाएगा, वो कपड़े धोएगी, वो खाना पकाएगी. ठीक है. आने वाले ज़माने में या आने वाले कल में जो काम होना है उसके बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the affirmative case of future indefinite tense, and there are 3 rules that we have to follow. Number 1, in future indefinite tense we use first form of verb. Verb की first form इस्तेमाल होती है. With I and we use shall with first form of verb. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो I और we होगा तो उसके साथ हम helping verb shall लगाएंगे. With remaining pronouns and nouns we use will. Remaining pronouns कौन से हैं? He, she, it, they, you. ठीक है. और कोई भी जो नाम है, अगर कोई नेम होगा या अगर कुछ और नाउन होगा तो उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे. लाइक फॉर्मेशन हमारी 1 जो है वो क्या बनेगी? अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो सेंटेंस की फॉर्मेशन में नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है shall, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. ठीक है. Like example, I shall drink milk, we shall drink milk. फॉर्मेशन 2 में आप देखें, हमारे पास अगर हमारा सब्जेक्ट you, he, she, it, they सिंगुलर और प्लूरल नाउन अगर होगा तो फिर हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल एंड उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. इसमें एग्जाम्पल्स में आप देखो, यू विल मो द ग्रास, सारा विल मो द ग्रास, दे विल मो द ग्रास. ठीक है. You can solve more examples like she will speak sweetly, you will speak sweetly, they will speak sweetly, Ali will speak sweetly, we will speak sweetly, Sarah and Ali will speak sweetly. ठीक है. Now we will talk about the negative case of future indefinite tense, and the rules are: in future indefinite tense when we make negative sentences we use will not or shall not with first form of verb. यानी फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी फर्स्ट ही रहेगी और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शेल उनके साथ नॉट का इजाफा कर देंगे. नंबर 2, वी यूज शैल नॉट विद आई एंड वी. अगेन वही अफर्मेटिव केस के साथ जैसे हमने किया अफर्मेटिव केस में कि हमने आई और वी के साथ शैल लगाया था, इसी तरह नेगेटिव में भी हम आई और वी के साथ शैल नॉट लगाएंगे. वी यूज विल नॉट विद यू, दे, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन.
कोई भी और सिंगुलर और प्लूरल नाउन और यू, दे, ही, शी, इट के साथ जो है विल नॉट लगाएंगे। फॉर्मेशन 1 में अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेंटेंस की फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। Examples you can see, I shall not open the door. We shall not open the door. Formation 2 में अगर हमारा subject you, he, she, it, they and singular and plural noun है तो formation में next helping verb will not plus first form of verb plus object plus full stop आएगा, ठीक है। Now we will see the examples. You will not sail the boat. She will not sail the boat. They will not sail the boat. You can solve these examples. We shall not run in the street. It will not run in the street. You will not run in the street. Ali will not run in the street. Cat will not run in the street. Nida and Umar will not run in the street. Okay. Now let's talk about the interrogative case of future indefinite tense. And the rules are: in future indefinite tense, when we make interrogative sentences, we use will or shall in the beginning of the sentence. जब हमने interrogative case बनाना है तो हमें पता है कि हमने helping verb को sentence के start में लिखना होता है, ठीक है। We use first form of verb with will or shall. We put question mark in the end of the sentence. Formation 1 में shall plus subject अगर हमारा I और we है तो shall आएगा, plus first form of verb plus object plus question mark. Examples: shall I accept the invitation? Shall we accept the invitation? Formation 2 में अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो यू, ही, शी, इट, दे सिंगुलर और प्लूरल नाउन होंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल आएगा सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे विल दे क्रॉस द ब्रिज, विल ही क्रॉस द ब्रिज और विल इट क्रॉस द ब्रिज। अब नेक्स्ट आपको जो एग्जाम्पल्स नजर आ रही हैं यू कैन सॉल्व देम टू। विल सारा कम ऑन टाइम, शेल आई कम ऑन टाइम, विल इट कम ऑन टाइम, विल ही कम ऑन टाइम, विल दे कम ऑन टाइम एंड विल शी कम ऑन टाइम। ठीक है, होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड स्टूडेंट्स, आज आपकी डायरी ये है कि आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिवीजन कराई गई है, आपने इस टेंस से रेलेवेंट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक्स पर आपने लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।